Hello friends, once again welcome in CPJ Academy. In the previous lecture, you have learned about the taxonomy, the need of taxonomy and various branches of the taxonomy. Now in this lecture, you will gonna learn about this taxonomy hierarchy. Okay, so in that chapter you will gonna learn about that. As you can see in that picture, there are so many branches, or you can say rank. Okay, so yes, just start our lecture. So yes, what is the first thing that comes in your mind when you saw this term like taxonomy hierarchy? If you saw this word, so it's very clearly visible that it consists of basically two types. Okay, that means if you bifurcate these two terms like taxonomy and hierarchy, टेक्सोनॉमी जो मैंने आपको पहले प्रीवियस आपकी वीडियो में मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है. टेक्सोनॉमी दैट मीन्स यू हैव टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स. ओके, एंड दिस हायरार्की, the another meaning of that hierarchy you can say rank. So in that what you have to do, you have to categorize the organism in a sequential order or in a rank, you can say. So if you see the definition of the taxonomy hierarchy, so it's something you can say taxonomic hierarchy. It is the process of arranging various organisms. जैसा कि आपको पता है कि आप टेक्सोनॉमी में बेसिकली कर क्या रहे हैं, दैट आप क्लासीफाई ही कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को. ठीक है, तो दैट मीन्स यू हैव टू अरेंज वेरियस ऑर्गेनिजम्स इन टू सक्सेसिव लेवल्स. जैसे हायरार्की का मीनिंग ही यही होता है, तो वही उसी चीज को उसने एक्सप्लेन किया हुआ है. ओके, सो इन टू सक्सेसिव लेवल्स of the biological classification, either in a decreasing or an increasing order. I will tell you कि ये decreasing और increasing order क्या है, because इसकी जो भी ranks हैं, ठीक है, that like start from the domain and on species, वो क्या है, I will gonna tell you each and everything. Okay, so that is or an increasing order from kingdom to species. Okay, kingdom that is the largest taxon. If you saw कि अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखो तो एनसीईआरटी में असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है. दैट मीन्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट वन. ठीक है, तो स्पीशीज टू किंगडम दिया हुआ है. बट इफ यू सी दैट here in that video, like in that I mean here, that from kingdom to species and vice versa. That means from kingdom to species and species to kingdom. Okay, if it is from kingdom to species, that means from largest to the smallest one. So that is in, you can say, in a descending order. Okay, that means from largest to smallest. पर अगर यही सेम चीज स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ है, मतलब स्पीशीज से आपकी किंगडम की तरफ है, तो उसे बोलेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में है. ये चीज तो आपको क्लियर ही होगी. ठीक है, अब जो भी हम इसमें लेवल करेंगे दैट इज termed as taxonomic category or rank. Okay, each of this level, whether we are talking about kingdom, whether we are talking about phylum or some other rank, so that is kind of rank. So just have a look that what is the definition of the taxonomic hierarchy. So it's you can say let me have this. So you can say that it is refers to the sequence of categories. Okay, जो भी आपने classification किया, that means sequence of categories in increasing or decreasing order, that I will gonna tell you in the upcoming slide. So yes, kingdom will be the highest rank and species will be the lowest rank in the hierarchy. Now in the previous video I had told you like what is a taxon. Okay, so taxon is nothing, it is just a group of organisms, okay, which is classified as a unit. I will tell you that. So if you see in your NCERT book, तो वहां पर आपको मेजरली 7 लेवल्स दिए हुए हैं, जिसमें आपको जो फर्स्ट वन है दैट इज किंगडम, सेकेंड वन इज फाइलम. फाइलम इन केस ऑफ एनिमल्स. ठीक है, अगर आप एनिमल्स की बात कर रही है, सो इन दैट केस यू विल गोना यूज दैट टर्म फाइलम. और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, so that term will be division. Okay, then third level or rank we have, that is class. Fourth one we are having is order. Fifth one we are having is family. Sixth is genus, and seventh one is species. We have the 7 taxonomy categories, and this is one of the most important that you can write on in your exam sheet too. So yes, just have a look there. So species को अगर आप देखना चाहे, so species basically क्या है? See, these are certain groups of organisms that breed with one another. Okay, वो similar से ही belong करना चाहिए. ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ब्रीडिंग प्रोसेस है वो सिमिलर ऑर्गेनिज्म में ही होनी चाहिए. ठीक है, जैसे जो आपके ह्यूमंस हैं, ठीक है, वो ह्यूमन
ह्यूमन के साथ ही कर सकता है, ठीक है, और एनिमल एनिमल के साथ ही ब्रीड करेगा, तभी उनका ऑफस्प्रिंग होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि ह्यूमन एनिमल के साथ करता है। By the way, that was just in a joke manner. So just learn that thing, that what is species. So species, it's a group of organisms that breed with one another and produce fertile offspring. ठीक है, that means मेल जो है वो फीमेल के साथ ही करेगा। कहने का मतलब क्या है कि जो ह्यूमन है वो ह्यूमन के साथ ही ब्रीड करेगा, और जो एनिमल है वो एनिमल के साथ ही ब्रीड करेगा। दैट रिप्रेजेंट्स स्पीशीज। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन पर्टिकुलर मैनर, लाइक फॉर लाइक एक ह्यूमन, ठीक है, ये एक स्पीशीज होगी आपकी, पर्टिकुलर एक स्पीशीज आपकी एनिमल होगी, एक प्लांट हो गया आपका। सो दैट रिप्रेजेंट्स स्पीशीज, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर सिमिलर एंड दैट कैन ब्रीड। ओके, second one we are having is genus, as you can see there. So it's a group of closely related species, जो आपकी बिल्कुल connected species होंगी, ठीक है, जो closely related species होंगी वो आपकी species होंगी, वो आपका सॉरी जीनस होगा। ऐसे ही फैमिली में क्या बोलोगे आप, जितने भी आपके क्लोजली रिलेटेड जीनस होंगे, इन द अपकमिंग स्लाइड आई विल टेल यू व्हाट काइंड ऑफ जीनस आई एम टॉकिंग हियर, ठीक है, बिकॉज हर किसी के लिए अलग अलग ही जीनस होगा, हर किसी के लिए आपका अलग स्पीशीज होगा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्लांट्स और एनिमल्स और समथिंग लाइक दैट, सो सबके केस में वो सब कुछ अलग ही होगा, ठीक है। तो जीनस का मतलब क्या होगा कि जब क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होंगी तो आप उसे बोलोगे जीनस। अगर ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस होगा सो दैट विल बी टर्म्ड एज फैमिली, और इफ देयर इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली देन दैट विल बी टर्म्ड एज ऑर्डर। ओके, देन देयर इज क्लास। क्लास का मतलब क्या होगा, ऑर्डर, मतलब कि अगर आपका सिमिलर ऑर्डर्स है या ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स है जो कि सिमिलर है, देन दैट विल बी टर्म्ड एज क्लास। ऐसे ही अगर आपकी फाइलम की बात करें तो फाइलम में क्या होगा, ग्रुप ऑफ क्लास दैट आर सिमिलर, so several different classes that share important characteristics, ठीक है। so phylum is something you can say several different classes that share important characteristics, ठीक है। किंगडम, किंगडम में क्या होगा, दैट इज, मैंने अभी आपको बताया था दैट इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्सोन कंसिस्टिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड फाइला। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपली बताना है आपको कि आपका जो जीनस बना है वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज से बना है। ऐसे ही आपकी जो फैमिली बनी है वो आपकी क्लोजली रिलेटेड जीनस से बनी है। ऐसे ही आपका ऑर्डर कैसे बना है, क्लोजली रिलेटेड फैमिली से। दैट इज सो ओके। सी हियर आई अटैच्ड like a image for the examples, as you can see there. If I am talking about man only, okay, so biological name for the man is Homo sapiens. Here this Homo means आपका जीनस, ओके, एंड दिस sapiens represents your species, ठीक है। यहाँ पर मैंने species का mention नहीं किया, but yes, it represents species. Then we are, if I am talking about the family, so it's Hominidae, order is Primata, class is Mammalia, and phylum or the division that is Chordata. You have to remember that thing, okay. So in case of man, it's it's division or phylum. Just tell me, it's phylum. Okay, in case of plants we use this division, like in case of mango you can say we are hearing that having the example for the division is angiosperm. Okay, for wheat it's also angiosperm, and we are here we don't say phylum, we will say division, because in case of plants we say division, and in case of animals we use the term that is phylum. Okay, then another example for that we are having is housefly. If you say, so the biological name for the housefly is Musca domestica. Okay, so here this domestica means species and this Musca means genus. Okay, then family we are having there, and order. So there are certain examples you can have look there. So it is just to let you know that what is genus, what is family. So ये जो family है आपकी वो genus closely related genus से ही आपकी family बनी है, ठीक है। That's how they represent the basic order for that. So when I was of your age, मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी कि मुझे याद नहीं रहता था लेवल के बाद कौन सा आएगा। सो हियर आई वांट टेल यू सर्टेन न्यूमोनिक्स, इसके बाद तुम कभी भूलोगे ही नहीं, यू विल नेवर गोना फॉरगेट कि हायरकी में कौन सा लेवल किसके बाद आता है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जाम। यू मे गेट लाइक आपको किंगडम दे देंगे और बीच में 2-3 स्पेस खाली छोड़ देंगे, ठीक है, एंड दे विल गोना आस्क कि आफ्टर किंगडम व्हाट विल कम हियर एंड व्हाट इट रिप्रेजेंट्स along with the example. So you must know कि kingdom के बाद क्या आता है. Like here you can say as I already told you कि there are 8 kingdom, I mean sorry 8 levels are there.
सो फर्स्ट लेवल दैट इज डोमेन. ओके, उसके लिए आपको ये एक निमोनिक्स है, दैट इज डू किंग्स प्ले कार्ड्स ऑन फाइन गोल्ड सोफाज. ठीक है, so like this do, like domain, that means do. Here this K represents kingdom. You can use the mnemonics that is kings. Okay, so I will gonna tell you the mnemonics only. P, that is play. You can remember that phylum from that term, that is play. Or in case of animals, that is phylum, or in case of plants it's division. Just remember that. Okay, in case of division is for plants and phylum is for animals. Okay, then this class you can remember by the mnemonics cards. Okay, this order you can remember by own. This family, that means F, fine. Here you can see genus, that is G, so that is gold. Okay, and this specific epithet or species, that is sofas. So here the mnemonics. So do kings play cards on fine gold sofas is one of the best or important way to learn or to remember these hierarchy levels. So yes, अभी तक आपने जो टेक्सोनॉमी हायरार्की पढ़ा ना, तो क्वेश्चन इज नीड क्या थी वो पढ़ने की. वो जो टेक्सोनॉमी हायरार्की बनाई गई है, द मेन पर्पस फॉर दैट, सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टूड कि स्पेसिफिसिटी लेवल कहाँ बढ़ रहा है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स किस में ज़्यादा है, या नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स कहाँ ज़्यादा है. तो नटशल में हम यही बात करेंगे इस पूरा जो भी आपने लेवल्स पढ़ा है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये होते क्या है. Then second thing comes that you have to remember that thing. First one is specificity. We have to talk about in the terms of specificity कि specificity कौन से लेवल पे ज़्यादा होगी, कौन से लेवल पे कम होगी. ठीक है, ऐसे ही you have to learn the number of the organisms कि number of organisms किस में ज़्यादा होंगे या किस में कम होंगे. थर्ड वन वी आर हैविंग इज द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स. ठीक है, कि कॉमन कैरेक्टर्स जो बिल्कुल सिमिलर वाले हैं वो किंगडम में ज़्यादा होंगे या स्पीशीज में ज़्यादा होंगे. सो इन द अपकमिंग स्लाइड आई विल टेल यू दैट थिंग इन अ वेरी इजी वे. So just stay connected. So just as in that picture you can have a look. Like first आपको पता है कि किंगडम आता है, उससे पहले भी अगर हम बात करें तो डोमेन आता है. जस्ट इमेजिन बहुत ही इजीएस्ट वे में मैं आपको बताने जा रही हूँ चीज. जस्ट इमेजिन आई एम कंपेयरिंग दैट डोमेन विद लाइक अ वर्ल्ड. ठीक है, तो किंगडम है वर्ल्ड की तरह मान के, क्योंकि अभी अगर हम डोमेन को भी लेके चलते हैं, ठीक है, आप डोमेन को वर्ल्ड मान लीजिए और किंगडम को उसका एक हिस्सा लाइक एशिया मान लीजिए. कैसे भी आप ले सकते हैं. जस्ट मैं आपको किंगडम से स्पीशीज की तरफ बता रही हूँ. वैसे तो चलो आप डोमेन से भी ले सकते हैं. लाइक so we are talking about like in a descending order. Let's say descending order मतलब हम largest taxon से, like for example if I am talking about the domain 2 right there, domain. so अगर हम डोमेन से मैं बोलूँ आपको, मैं बात कर रही हूँ स्पीशीज की तरफ, मतलब कि लार्जेस्ट से मैं बोल सकती हूँ. डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जा रही हूँ, बिकॉज आपका जो डोमेन है दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्सोन, और जो आपका स्पीशीज है वो स्मॉलेस्ट टेक्सोन है. ठीक है, सो लेट्स से आपका डोमेन जो है वो वर्ल्ड है, लेट्स से. और जो एक किंगडम है यू कैन से लाइक, अब मैं पूरे वर्ल्ड में से एक स्पेसिफिक एरिया, लाइक मैं एशिया को उठाती हूँ. ठीक है, एशिया को ले लेते हैं हम किंगडम में. तो जस्ट टेल मी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो किस में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगे, डोमेन में या किंगडम में. वर्ल्ड में ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे, या अगर मैं एक पर्टिकुलर एशिया की बात कर रही हूँ उसमें. ऑब्वियसली जो आपका वर्ल्ड है वहां पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगे. ठीक है, ऐसे ही अगर मैं किंगडम से नेक्स्ट लेवल पे आती हूँ, लाइक फाइलम. फाइलम को मान लो इंडिया, ये मेरा इंडिया है ना. सो किंगडम में क्या है, एशिया में बहुत सारी कंट्रीज आ गई. अब मैंने उस कंट्रीज में से भी एक पार्ट ले लिया इंडिया को. सो अब इंडिया और किंगडम में अगर मैं कंपेयर करूं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स किस में ज्यादा होंगे, एशिया में ज्यादा होंगे या फाइलम में. ऑब्वियसली आपके फाइलम में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम होंगे एज कंपेयर टू द किंगडम. तो दैट मीन्स यू कैन से कि जब आप किंगडम से स्पीशीज की तरफ आते हो, ठीक है, किंगडम से स्पीशीज की तरफ आते हो, तो आपके नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिक्रीज करते हैं. ठीक है, किंगडम में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे,
फाइलम में सब उससे कम, क्लास में उससे कम, ऑर्डर में क्लास से कम होंगे। दैट मीन्स जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में डाउन द ग्रुप जाते हो, आप स्पीशीज की तरफ जब आते हो, तो आपके नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, लेट्स सॉरी, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम होते हैं, क्लियर, क्योंकि आपकी किंगडम में ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली स्पीशीज में कम होंगे। सो जस्ट लेट्स टॉक अबाउट इन अनदर टर्म, लाइक इफ आई एम, दैट वाज अबाउट द डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर मैं बात करती हूँ आपकी लेट्स से असेंडिंग ऑर्डर की, ठीक है, जस्ट हैव दिस, तो जस्ट टॉक अबाउट दी सेकेंड, तो ये जस्ट टॉक अबाउट दी लाइक योर अगर मैं असेंडिंग की बात कर रही हूँ, असेंडिंग का मतलब क्या होगा, दैट इज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वन। ठीक है, लाइक अभी हमने क्या बात करी थी, आपने किंगडम में क्या लिया, सबसे बड़ा एरिया ले लिया, स्पीशीज तक आते आते लेट से आप दिल्ली तक आ गए। ठीक है, सब कुछ कि आपने नॉर्थ जोन लिया, सब जोन लेके आप एंड में दिल्ली पे आ गए। तो अगर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म किंगडम से आपके लोएस्ट लेवल पे यानी कि स्पीशीज पे कम हो रहे थे, तो असेंडिंग में ऑब्वियसली इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विल इंक्रीज, मतलब आपका स्मॉलेस्ट टेक्सोन है स्पीशीज, लेट से दिल्ली की बात कर रहे हैं अगेन। अब दिल्ली में तो क्या है, आपके नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, बट नंबर ऑफ पर्सन लगाओ या ह्यूमंस या कुछ भी लगाओ वो है। अगर मैं उससे थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पे जाती हूँ, स्पीशीज से पहले क्या आता है आपका जीनस। ठीक है, अगर मैं जीनस पे जाती हूँ तो जीनस में ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो मतलब आपका असेंडिंग में अगर आप देखते हो, सो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विल इंक्रीज। ठीक है, और डिसेंडिंग में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विल डिक्रीज। नाउ जस्ट लेट्स टॉक अबाउट कॉमन कैरेक्टर, दैट सी मीन्स कॉमन कैरेक्टर्स एंड स्पेसिफिसिटी। ठीक है, अभी आपने पढ़ा कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ेंगे या कम होंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉमन कैरेक्टर्स एंड द स्पेसिफिसिटी। सी, अगर आपके नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ रहे हैं, ठीक है, डिसेंडिंग में क्या होता है, आपके जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, लेट मी राइट दिस, सो दैट इज स्पेसिफिसिटी, जस्ट लुक देव। सो किंगडम में क्या था, आपका नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डाउन द ग्रुप, लाइक जब आप किंगडम से स्पीशीज की तरफ जा रहे थे तो क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे, क्योंकि किंगडम में वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं, स्पीशीज तक आते आते दिल्ली तक आते आते लोग कम हो जाएंगे अगर हम कंपेयर करने लगे। ठीक है, अब कॉमन कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे, बढ़ेंगे ऑब्वियसली। अगर मैं एक वर्ल्ड और एक एशिया की बात करती हूँ, तो वर्ल्ड में तो बहुत सारे लोग फिर भी क्या है आपस में आपके क्या बोलते हैं उसे, मिलते जुलते रहते होंगे। तो वर्ल्ड में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब स्पेसिफिसिटी भी है उनमें बट जैसे हम डाउन द ग्रुप लाइक एक लोकल एरिया की तरफ आते रहेंगे तो कॉमन कैरेक्टर्स भी तो मिलते जाएंगे ना, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर चीज को ले लिया। तो इनका जो कॉमन कैरेक्टर्स है और जो स्पेसिफिसिटी है, ठीक है, जो यूनिकनेस बोल सकते हो तुम, सो दैट विल बी इंक्रीज, जबकि आपका जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है, बट आपकी कॉमन कैरेक्टर्स और स्पेसिफिसिटी जो है वो आपकी इंक्रीज करेगी, एज यू कैन सी, लाइक फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज, दैट इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो जस्ट कम बैक टू द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अब क्या होगा, लेट्स से लाइक दिस, यू कैन से, अब स्पीशीज में क्या है, तुम पर्टिकुलर दिल्ली की बात कर रहे हो। ठीक है, अब दिल्ली में तो क्या है, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, अब मैं थोड़ा सा पास एरिया में चले जाती हूँ, दिल्ली के भी यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर एरिया की बात करती, इससे राजौरी गार्डन की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर मैं दिल्ली के भी किसी पर्टिकुलर एरिया की बात करूँ, वहाँ क्या होंगे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपके कम होंगे, क्योंकि किंगडम उसमें तो अगर मैं कंपैरेटिवली लाइक इन असेंडिंग ऑर्डर अगर मैं बात कर रही हूँ, दैट्स ऑन दैट बेसिस। सो यहाँ जो आपके, अगर आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हो तो आपके नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इंक्रीज ही करेंगे आपके नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर उससे लेट से 15 थे पर्टिकुलर उसमें, दिल्ली के पर्टिकुलर एरिया में, रजौरी गार्डन में। अब मैंने पूरे दिल्ली को ही कवर कर लिया तो उसमें ऑर्गेनिज्म बढ़ जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विल इंक्रीज, सो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आपके बढ़ेंगे। फिर आपका कॉमन कैरेक्टर। ठीक है, सो यस, अभी तक आपको ये पता लग चुका है कि यस दिस इज टेक्सोनॉमिक हायरार्की, ओके, दीज आर द लेवल्स, दिस इज टेक्सॉन। नाउ द थिंग इज व्हाट इज द गोल। ऑब्वियसली हर चीज का गोल होता है।
अगर आज आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ एम या गोल तो होगा ही, ठीक है। सेम ऐसे ही टेक्सोनॉमी का भी गोल है, एंड दैट इज लाइक यू गोना प्लेस समथिंग इन अ लॉजिकल कैटेगरी, सो द मेन गोल बिहाइंड दिस इज दैट द सिस्टम मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग यूज फॉर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के पर्पज से होता है, सो कोई भी प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकेगा ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि हमारे पास एक ऑर्डरली मैनर्स एक सिक्वेंशियली ऑर्डर में मैनेज सब कुछ है, तो उसमें क्या होगा, सामने वाले को सब क्लियर हो जाएगा एक ही बारी में, ठीक है। सो प्लेस ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज दैट शो एंसेस्टर डिसेंडेंट रिलेशनशिप, ठीक है। तो रिलेटेड ऑर्गेनिज्म को इस तरीके से आपको वहां पर अरेंज करना है, रिलेशनशिप तो इजीली जिसमें होती हो। So yes, in that slide, have you? I mean, this is clear, visible to you, like taxonomical age. So, what is the first thing that comes in your mind when you hear that taxonomical age? It's something like you can say, आपके पास बहुत सब कुछ सामान है, ठीक है, आपने कलेक्ट तो कर लिया, अब उसको स्टोर भी करके रखना है। सो यू कैन से इट्स अ काइंड ऑफ स्टोरिंग हाउस। जैसे आपके पास आपका एक होता है ना घर में, स्टोर रूम होता है जहाँ पर आप चीज़ों को स्टोर करके रख देते हो कि जब मुझे फ्यूचर में कभी रिक्वायर्ड हुआ तो मैं यहाँ से ले लूँगी। तो सेम यहाँ पर है, टेक्सोनॉमिकल एड्स इट्स अ काइंड ऑफ स्टोरेज हाउस, जहाँ पर आप क्या करते हो, जो भी आपके सैम्पल्स हैं, whether it is like from plants or animals, you have to just store them. So what is taxonomical aids? You can have a look here. These are the collections of samples or preserved organisms. Okay, so collection of samples or preserved organisms which help in extensive research for identification of various taxonomic hierarchy. Okay, that means just you just have to store each and everything like plants or animals, or you have to collect the samples or preserved organisms in that very kind of store. Okay, now the question comes कि कौन कौन से आपके पास वो स्टोरेज हाउस है जहाँ पर आप चीज़ों को स्टोर करके रखते हो. So basically, as in that picture, you can have a look this. So in that you can have a look, like we have botanical gardens. नाम से ही clear है कि plant से related होगा. Like one of the example you can say Mughal garden is there, like okay. So then we are having a herbarium is there, museum, zoological park is there. I will gonna tell you each and everything. Okay, in the upcoming slide, flora is there, catalog, manuals, monograph is there. It's all something like that. आपको स्टोर भी करना है और एक बड़े मैनेजेबल तरीके से आपको उसकी इंफॉर्मेशन को भी साथ के साथ लिखना है कि वो कहाँ से आया, कैसे आया, कौन लाया, एंड ऑल दैट. So just come to the next slide. So first thing is herbarium. हर्बेरियम क्या है, यहाँ पर आपको जो भी आपका स्पेसिमेन है, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट, तो वो आपको ड्राई करना है, ठीक है, और उनको माउंट करना है शीट्स पे, ठीक है, ताकि फ्यूचर में अगर कभी आपको रिक्वायर्ड हो, सो यू कैन इजीली गो एंड हैव अ चेक कि अच्छा ये, ठीक है, विद द प्रोसीजर कि आपको जो भी प्लांट को आपने माउंट किया ऑन द शीट, यू हैव टू राइट द बॉटेनिकल नेम, राइट दिस साइंटिफिक नेम. मैंने आपको बताया था कि बॉटनिकल जो आपके बायनोमियल नोमेनक्लेचर है उसी के बेस पे आपको नाम लिखना है, उसका लोकल नेम भी लिखना है, प्लस कब और कहाँ से और कौन लेके आया, ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट द हेर्बेरियम. सो इट्स अ प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेंस आर केप्ट, यू कैन से क्या. सो जो भी आपका स्पेसिमेन है, यू हैव टू माउंट दैट ऑन शीट्स which are kept systematically according to widely accepted system of classification. Okay, herbarium sheets also carry a label. जो भी sheets है जहाँ पर भी आप उसे माउंट कर रहे हो, that carries a label providing information about date and place of collection. Okay, कि कहाँ से कलेक्ट किया गया है और कौन सी डेट को कलेक्ट किया गया है. with this English, local and botanical name, this is must. Botanical name is must, okay, along with its local name. सो कलेक्टर्स नेम कि किसने कलेक्ट किया है, उसके साथ आपको वो सब मेंशन करना पड़ेगा. एज यू कैन सी दिस इज नॉट क्लियर टू यू, आई थिंक ये जो नाम है, एज यू कैन सी दिस इज अ शीट, एंड यहाँ पर क्या है, जो भी आपके सैंपल है सबको माउंट किया गया है और नीचे इसका सब ऑर्डर लिखा गया है कि येस दिस इज द पर्सन जो लेके आया, ठीक है, इस डेट को लेके आया, ऑल दैट. सेकेंड वन वी आर हैविंग इज बॉटनिकल गार्डन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मे गेट दैट क्वेश्चन, ठीक है. सो बॉटनिकल गार्डन क्या है, see herbarium में क्या था, they are like you can say dead kind of plant, but it's a kind of it's in a form of preserved, but in botanical it's a live plant, you can say.
So these are specialized garden having collection of living plants for reference. ये लिविंग प्लांट्स होते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर्बेरियम में आपके लिविंग नहीं होते बट बॉटेनिकल में आपके लिविंग प्लांट्स होते हैं. So plants in these gardens are grown for identification purpose and each plant is labeled indicating its scientific name and family. तो इसमें आपका साइंटिफिक नेम और फैमिली मेन इंडिकेट किया गया होगा. जैसे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि जो रॉयल बॉटेनिकल गार्डन है वो कहाँ है, सो यू मस्ट नो दैट इट इज सिचुएटेड इन क्यू और लंदन. ठीक है. इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कहाँ पर है, दैट इज इन कोलकाता. एंड नेशनल बॉटेनिकल गार्डन जो है वो आपका लखनऊ में. दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट यू मे गेट. तो जस्ट हैव केप्ट इन योर मेमोरी लाइक कि रॉयल बॉटेनिकल गार्डन कहाँ है, इंडियन कहाँ है. सो नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग इज another taxonomical aid, that is monograph. See, mono मतलब क्या होता है, सिंगल. ग्राफ मीन समथिंग रिटन, यू कैन से कि सिंगल टेक्सोन की, टेक्सोन मीन्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की. ठीक है. किंगडम में बहुत आते हैं, प्लांट आता है आपका, एनिमल आता है, तो एक सिंगल टेक्सोन की आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मोनोग्राफ देता है. ठीक है. देन वी आर हैविंग इज मेन्यूल्स. These are the taxonomical aid which maintains the information for identification of names of species found in an area. मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कौन सी स्पीशीज पाई जाती है उसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन आपको मैनुअल्स में मिलेगी. देन वी आर हैविंग म्यूजियम. गए होंगे म्यूजियम, स्कूल टाइम में लेके जाते हैं, कॉलेज टाइम में लेके जाते हैं. तो ये एक यू कैन से एजुकेशनल पर्पज से ही बनाए जाते हैं ताकि बच्चों को पता लगे कि येस वी आर हैविंग विद दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. Okay, so biological museum it's set up in the educational institutions like colleges and school for references purposes. So specimens are preserved in the containers or jars. Now the thing is what kind of preservative solution they use. So it's, you can say it's a kind of formalin or another are also there. So और एज ड्राई स्पेसिमेंस. ठीक है. ड्राई स्पेसिमेन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, उनको कंटेनर में विद प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन भी स्टोर करके रखा जा सकता है. इंसेक्ट को कैसे, इंसेक्ट बॉक्सेस में रखा जाता है. ठीक है. उनको किलिंग कार्पिंग करके कलेक्ट किया जाता है बॉक्सेस के अंदर. देन वी आर हैविंग इज जूलॉजिकल पार्क्स. सो जूलॉजिकल पार्क्स इट्स अ काइंड ऑफ जू, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, बचपन में बहुत गए हो गया. सो ये क्या है, इनको एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रखा जाता है. ठीक है. यहाँ पर दीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स, जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है इन अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में. ओके. So under human care and which enable us to learn about their food habits, कि उनका खाना पीना कैसा है, क्या खाते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है. कहने का मतलब उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है. अब जो नेशनल जूलॉजिकल पार्क है दैट इज इन दिल्ली, जू इज सिचुएटेड इन दैट इज इन न्यू दिल्ली. So yes, this was all about taxonomic hierarchy or taxonomical aids and different ranks that come under taxonomy. So yes, that's all about that you can say here your chapter that is the living world ends. And अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, बहुत पसंद आई हो, so please like this channel, like this video and subscribe this channel too and share this video. Thank you so much. So yes, I have attached most important questions related to the living world in the description box. So just go through them. So just you may have an idea like what type of question you may get in your exams if I am talking about in NEET or related to 11th NCERT class. So just go through them.